ज़ीनत महफिल मोहम्मद मुस्तफ़ा भट्ट साहब हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम फॉर्मली अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि इस महफिल का जो हमारी शुरुआत होगी वो तिलावती कलाम पाक से होगी। और वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں اس لم لم اچھن لج مسدار وچ ودان ہم یم یہ مصطفیٰ صاحب کرت گو کار وچ ثلت روشت یہ استرویت کت شوبان تہن سر ثلت روشت یہ استرویت کت شوبان تہن شہل شفیق لبو کت سو ملسار وچ مدر مدریر سو خوش اخلاق کلامات تہن مدر مدریر سو خوش اخلاق کلامات تہن نرم طبیعت مزاجن سو شری گفتار وچ سو سمجھے تب پلٹتے ہیں بلا چھوڑ کے جانے والے کہ آج کی یہ خاص اور پروکار الوداعی تقریب محترم محمد مصطفیٰ بٹ صاحب پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول کھنمو کی یاد میں خاص طور سے منائی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ سر حال ہی میں ہائر سیکنڈری اسکول بوٹنگو سے رخصت پا کر ہائر سیکنڈری اسکول کھنمو میں جوائن کر چکے ہیں۔ مصطفیٰ سر تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے احسانوں، عظیم کارناموں اور اپنے کام اور سٹاف ممبران کے تئیں والانہ محبت اور شفقت کی ایک خوبصورت اور تاریخی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں بھی خدا نہ خواستہ اللہ بچائے کل اس کو یہاں پہ بند ہی کیا جائے گا کیونکہ اس کا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ اور ریسنٹلی جب مصطفیٰ صاحب کا لاسٹ بٹ ون آخری دن تھا وہاں پہ تو پھر میں گیا اور میں نے دیکھا، واللہ عالم مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ میں اسی ہائر سیکنڈری میں گیا جہاں پہ میں نے پہلا وزٹ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیڈمشنز کے ساتھ ساتھ ایک کنسٹرکٹیو مائنڈ فار دا ایجوکیشن لازمی ہے، اور یہ بھی میں نے مصطفیٰ بٹ صاحب کے لائف میں نے دیکھا۔ اور رہی بات ادر انسٹیٹیوشنز کی جیسے رامپورہ ہائر سیکنڈری یا ایون HHS ڈانگر پورہ میں بھی اس نے چارج سنبھالی تھی کچھ مہینے کے لیے۔ رامپورہ ہائر سیکنڈریز میں ہمیشہ کیونکہ فار فلنگ ایریا اسٹاف کی کمی رہی، وہاں پہ جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی کی ٹرانسفر ہوتی تھی وہاں پہ تو وہ دوسرے دن اپنی اس ٹرانسفر کو چینج کر کے وہاں سے ویکیٹ کیا کرتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ صاحب کی موٹیویشن جو اس نے وہاں پہ رکھی کہ ہر کوئی بندہ تیار ہوتا تھا کہ کب مصطفیٰ صاحب مجھے کہے وربلی کہ آپ HHS ہائر سیکنڈری میں 1 مہینے 2 مہینے یا 1 سیزن کے لیے وہاں پہ جائیے اور اپنا کام کیجئے، وہاں پہ وہ تیار ہوتے تھے۔ اور کر دی کیونکہ بچوں نے صرف 2 کوشچنز کا آنسر نہیں دیا تھا، 2 کی دی تھی، اور اسی کے 3 مہینے کے بعد ہمارے مصطفیٰ صاحب اسی کلاس میں آ گئے، سیم ٹو سیم۔ اس نے جیوگرافی کے بھی کوشچنز پوچھے، میتھمیٹکس کے بھی کوشچنز پوچھے، سیم سچویشن تھی۔ بچوں نے کچھ کوشچنز کے آنسر دے دیے اور کچھ کے نہیں دے دیے، اینڈ اس نے مجھے انسلٹ کی، مجھے کچھ کیا، اس نے انکریج کیا، مجھے بچوں کو انکریج کیا، ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کو انکریج کیا، کہاں پر لوپ ہولز ہے کیسے ہی ٹھیک کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا واقعی ایک ایبلڈ آفیسر، ایک ایبلڈ لیڈر، ایک ایبلڈ ریفر، ایک شفیق دوست جس کو ہم رہبر کہتے ہیں۔ آئی ول ناٹ فارگیٹ دیٹ مومنٹ۔ وہ ہم یہاں سب نے مصطفیٰ صاحب کے بارے میں بولا ہے کہ انہوں نے جو بولا ہے یہ
मुस्तफ़ा साहब जो है ए मैन ऑफ कैरेक्टर, तो पर्सनली मैंने इसके साथ काम किया है, तो मैंने इसको जो ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पे मैंने जब मुस्तफ़ा साहब को ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ से फिर मैंने मुस्तफ़ा साहब के थ्रू जो एम्बाइब किया है, नई नई चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड की हैं, तो उसने मुझे सिखाया है एज एन सब ऑर्डिनेटर। एक चीज बढ़िया जो है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो इंतजाम है वो सबसे बढ़िया, इसलिए हमने कहा कि दर्द दिल के वास्ते, चाहे वो उनके अपने स्टाफ मेंबर्स थे, चाहे वो बच्चे थे, इनके लिए इनके दिल में बहुत ही दर्द हुआ करती थी। उसके बाद जो मुस्तफा सर में इनका जो विजन था, दैट्स अ ब्रॉड विजन। मुस्तफा सर ये नहीं देखते थे कि ये हमारे लेक्चरर साहिबान है, ये हमारा क्लास फोर्थ है, ये हमारे, इनका जो विजन है सबके लिए एक नजर है। तो इनका जो विजन था दैट इज द ब्रॉड विजन। और मुस्तफा सर में मैंने जो देखा है कि ये सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो मैंने पाया है वो मैंने मुस्तफा सर में पाया है। और Mustafa Saab, I was in close association with Mustafa Saab, being a political activist. Recently I fought the election and unfortunately lost it. But you know, successful people never relax on chairs, they work with commitment and dedication. So when I said commitment, it is Mustafa Saab. When I said dedication, it is Mustafa Saab. And when I say time, it is Mustafa Saab. For Mustafa Saab 10 बजे का मतलब होता है 9:45. श्रीनगर से अप एंड डाउन करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अगर मुझे भी श्रीनगर में मीटिंग होती है, 10 बजे की मीटिंग होगी, मैं 10:30 पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक जैम था, वो था, ये तो आई गिव a number of excuses to save my skin. But of course there are certain things which we need to understand on ground reality, and the ground reality at this point of time is I take the silence. I remember the day. और मौके हमें नसीब होते हैं नए लोगों के साथ रहने के लिए, और वो भी उनकी एक्सपीरियंस को साथ में लेके चलने के लिए। मुस्तफा साहब मोहताज तारुफ नहीं, हम सब जानते हैं, एक अच्छे इदारे के सरबराह रहे, और हमारे साथ अक्सर व बेशतर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक साथ हमने टेबल शेयर किया है। तो मुस्तफा साहब को मैंने सब स्पीकर्स को नहीं सुना, मांग की और लाया, तो उस हायर सेकेंडरी को आज उस नतीजे पे पहुंचा दिया है जहां पे उसमें बहुत मुझे लगता है सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इनरिच हुआ है, और एकेडमिक्स की तो वहाँ तो अच्छी गुंजाइश पहले से ही रही है, बहुत अच्छा एकेडमिक्स चलता है वहाँ पे। जहाँ पे उसकी ज़ाती कोशिशों का ताल्लुक था ये, तो ये इदारा जो है ये उस मंजिल पे पहुंचा है जहाँ पे उसको हम एक सही और अच्छा इदारा कह सकते हैं। इंसान जो है, इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान की जाने वाले छोड़कर अपना निशान जाते नहीं, बस फकत एक याद अपनी छोड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यादें रहेंगी, हम नहीं रहेंगे। कशिर पट अत वन करबल वो जगह है, जगह वहाँ ही है, भोटेंगू वहाँ ही है, ये कहीं नहीं गया, लेकिन भोटेंगू को संवारने वाला माली जो है वो चला गया, एक और माली वहाँ आ गया। ठीक है, वो माली उस पुराने को तहस नहस नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने लोगों ने इसकी नींव डाली है उन सबको याद किया जाए। तो ये यहाँ पर हमने एक वैलिडिटी फंक्शन का इनिकाद किया हुआ है। तो हमारे जो moment I joined that very institution, to be very honest, हालत सही नहीं थी, बहुत सारे मामलात जिन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और मैंने अल्लाह के फजल करम से पूरी कोशिश की कि मैं अपना फ़र्ज़ बिल्कुल हक़ के मुतरादिफ अंजाम दूँ, और अपनी तमाम सलाहियतों को बरायुकार ला कर मैंने हतुल-इम्कान कोशिश की कि मैं स्कूल की बका इंस्टीट्यूशन और जो आस पड़ोस के भी इदारे हमारे क्लस्टर के अंदर उनके बारे में भी मैंने यही राय रही कि उन पर भी काम करने की ज़रूरत है, और मैंने हतुल-इम्कान कोशिश की कि मैं किसी भी लेवल तक जाके उनके लिए अच्छा काम करूँ। और अल्लाह का फजल करम है जो आज आपने देखा भी
शायद मैंने काम किया है, यही वजह है कि लोगों ने आज अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक अजीम शान मजलिस का आगाज़ किया और मुझे यहाँ मदऊ किया। आज जहाँ है सिकारी, जिसको एक वक्त में कोई शायद मैं कहूँ कि उतना असर नहीं रहा था, या लोग शायद उसको उस नज़रिए से नहीं देखते थे, वो एक पहचान नहीं थी। आज अल्लाह के फजल करम से बोटिंको हायर सेकेंडरी जो है फर्स्ट एंड द ओनली वन मॉडल कंपोजिट हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के नाम से जानी जाती है। और इस वक्त जो है बोटिंको हायर सेकेंडरी का एक नाम, एक पहचान है, और लोग चाहते हैं कि हम, और उनकी चाहत जो है वो यही है कि हम बोटिंको हायर सेकेंडरी में जाके अपना काम अंजाम दें, हम वहाँ पे काम करें, हम वहाँ पे शुरू करें। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपका इरादा मुनज़्ज़म है, मुस्तक़िम है और अल्लाह पे नज़र है, तो अल्लाह आपका बिल्कुल मददगार साबित, और अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें देता है, फराहम करता है, अदा करता है। मुस्तफ़ा साहब की फेयरवेल के लिए और जो हमें अंदाज में हमने ये मुनाक़द की थी, हम दोस्तों ने यहाँ ये मुनाक़द की थी, क्योंकि हमें हक बनता है। जिस वक्त मुस्तफ़ा साहब हमारे स्कूल में उन्होंने ज्वाइन किया था, उस वक्त हमारे हायर सेकेंडरी बोटिंगो में एक सिंगल वाशरूम नहीं था चाइनीज़ बच्चों के लिए, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। एक जली हुई बिल्डिंग थी जो 1990 में जलाई गई थी, तो आज तक उसी में पढ़ाई हो रही थी। लेकिन माशाल्लाह आज जब वो जा रहे हैं, मैं उनको हमेशा कह रहा हूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आज आप एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला की नहीं, नॉर्थ कश्मीर की एक मॉडल कंपोजिट हायर सेकेंडरी, वाहिद मॉडल कंपोजिट हायर सेकेंडरी छोड़ के जा रहे हैं आप। हमें इस पे फ़ख्र है कि आज वहाँ हर एक चीज़ मैसर है जो वहाँ होनी चाहिए थी स्कूल में। I would like to thank Almighty Allah, the Creator, the Sustainer, the Lord of Lords, the King of Kings, and what not. To thank Almighty Allah for helping us to organize this beautiful occasion in the honor of Mr. Mustafa sir. After that, I would like to thank our chief guest, Mr. Mustafa sir, the way he honored us and make his presence felt well in time here. His vision, his wisdom, his administration, his management will be remembered all the time, and the love that has been entrusted in our hearts will be remembered and forever. The way you taught us the lessons, the way you taught us how to be very much enthusiastic in difficult times, so that is what we are remembering every time. That will be always in our hearts. And I would like to share one of the few moments here, that the sir has done extraordinary things, not only for his institution HSS Botingu, but for the HSS Rampura. Rampura Higher Secondary is not even a higher secondary. That is the first time I heard that is a hanging higher secondary.